السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وسلم وبارک صلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ نسبت مصطفیٰ بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ اللہ نے خود اپنے قرآن میں اپنے نبی سے یہ فرما دیا، محبوب جو آپ کا نہیں ہے وہ ہمارا بھی نہیں ہے۔ احباب گرامی، انتہائی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام شفیع المذنبین رحمت للعالمین حبیب خدا محبوب کبریا احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کا یہ عظیم الشان فقید المثال پروگرام جس میں آپ احباب تشریف فرما ہیں، میں انتہائی اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ احباب کے گوش گزار کر کے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا۔ میرے بعد انشاءاللہ الرحمن خطیب ابن خطیب محترم جناب حافظ اسامہ منظور صاحب اور شیر پاکستان حضرت مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کا بڑا جاندار شاندار خطاب ہونے والا ہے۔ آپ توجہ میری طرف رکھیے، انشاءاللہ میں ایک یا دو باتیں کر کے آپ احباب سے اجازت چاہوں گا۔ ماشاءاللہ شیر اسلام شیر پاکستان حضرت مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف لائے، ہم اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ شیر کا استقبال کریں، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شیر پاکستان حضرت مولانا منظور احمد صاحب، شیر اسلام حضرت مولانا منظور احمد صاحب۔ ماشاءاللہ شیر پاکستان خطیب عرب و عجم سلطان الواعظین میرے اور آپ کے محبوب خطیب تشریف لائے، ہم اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ شیر اسلام مولانا منظور احمد صاحب، شیر پاکستان مولانا منظور احمد صاحب۔ آئیے ذرا توجہ رکھیے اور ماشاءاللہ جو احباب اندر تشریف لے آئے ہیں وہ بیٹھیے تاکہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کر سکوں۔ جو بھائی کھڑے ہیں میں گزارش کروں گا اللہ کی رضا کے لیے تشریف رکھیے، کیونکہ میرے بعد شیر پاکستان کا خطاب آپ نے سننا ہے، تو میں اپنی گفتگو کو اور مختصر کرتا ہوں، اختصار کی طرف لے کر کے جا کر کے نہ پہلے نہ دوسرے نہ تیسرے بلکہ چوتھے گیئر کے اندر میں تقریر شروع کرنے لگا ہوں۔ آؤ آپ توجہ کیجئے، غور فرما لیجئے۔ حضرات، اگر کوئی شخص محنت کرے وہ محنت کر کے خطیب بن جائے گا، ادیب بن جائے گا، مقرر بن جائے گا، علامہ بن جائے گا، فہامہ بن جائے گا، عابد بن جائے گا، زاہد بن جائے گا، عالم بن جائے گا، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا پیغام یہ ہے، ہمارا اعلان یہ ہے، ذرا ایک مرتبہ میرے ساتھ بول کر کے بتا دو اور میری بات کی تائید کرنی ہے۔ کوئی بھی انسان محنت کر کے صحابی بن سکتا؟ کوئی بھی انسان محنت کر کے صحابی بن سکتا؟ نہیں بن سکتا، کیونکہ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا چہرہ پر انوار دیکھا ہو، آپ کے ساتھ ملاقات کی ہو، ساری زندگی ایمان کی حالت میں گزاری ہو، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ اور کون سا چہرہ دیکھا ہو جس کے بارے میں حضرت حسان بول اٹھے، فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تشاء۔ حضرت حسان کہتے ہیں محبوب یوں لگتا ہے جس طرح آپ اللہ کو کہتے گے اللہ آپ کو اسی طرح بناتا گیا۔ آؤ اب اصحاب پیغمبر کے بارے میں اللہ کے قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ اللہ کا قرآن اصحاب پیغمبر کے بارے میں اس امر کا اعلان کر رہا ہے، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ
बिमा आमनतुम बिही फक़द इह्तदौ। अल्लाह फरमाते मुझे ईमान ऐसा चाहिए जैसा ईमान सहाबा का है। अल्लाह फरमाते मुझे ईमान ऐसा चाहिए जैसा ईमान अबू बकर का है, जैसा ईमान उमर का है, जैसा ईमान उस्मान का है, जैसा ईमान अली का है, जैसा ईमान मुआविया का है रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। ये तो अल्लाह का कुरान है। आओ जरा तवज्जो कीजिएगा, आओ जरा गौर फरमा लीजिएगा। अल्लाह का कुरान पढ़ो तो सहाबा की अजमत बयान हो, अगर रसूल कायनात का फरमान पढ़ो तो सहाबा की अजमत बयान हो। आओ अगर सारे सहाबा का तज़किरा किया जाए वो सारा वक्त चाहिए, लेकिन मेरे उलमा मौजूद है, मुझे एहसास भी है और आल भी है। मैं अपनी गुफ्तगू को इंतहाई इख्तिसार की तरफ लेकर के जाना चाहता हूँ, लेकिन आओ अल्लाह ने फिर कभी मौका दिया सहाबा की अजमत सुनाऊंगा। लेकिन जो मैं बात अर्ज कर देना चाहता हूँ, सारे सहाबा में से सिद्दीक की सदाकत भी आला, उमर की अदालत भी आला, उस्मान की सखावत भी आला, अली की शुजाअत भी आला, मुआविया की सियासत भी आला, अम्मी जी की अजमत भी आला, फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की अजमत भी आला है। लेकिन इन सारे सहाबा में से मैं बात जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की करना चाहता हूँ, क्योंकि जनाबे अबू बकर वो मेरे प्यारे पैगंबर के सहाबी हैं कि जब मेरे आका ने ऐलान किया है कि लोगों अल्लाह के अलावा मुश्किल कुशा कोई नहीं, हाजत रवा कोई नहीं, बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं, तो जिसने सबसे पहले मर्दों में से प्यारे पैगंबर की बात को मानना है, आपकी बात पर लब्बैक कहा है, प्यारे पैगंबर की जात को मानना है, आपकी बात को मानना है, उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। फिर इसलिए मेरे आका ने क्या शान अता की है, तेरे और मेरे आका फरमाते हैं लौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीलन लत्तखज़्तु अबा बकर खलीला। लोगों अगर मैं किसी को अपना खलील बनाता जनाबे अबू बकर को बनाता, जिसके बारे में अहले सुन्ना वल जमा का इस बात पर इजमा है कि अफज़लुल बशर बादल अंबिया, सारे नबियों के बाद अजीम तरीन शख्सियत जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की है। जब उनकी अजमत में यारो अल्लाह का कुरान बोलता है, जब उनकी अजमत के अंदर रसूल कायनात के फरामीन है, फिर वजह क्या है? आखिरी बात और मेरा सलाम है, फिर वजह क्या है, सबब क्या है, रीजन क्या है, क्यों सिद्दीक के सदाकत पर बोला जाता है, क्यों सिद्दीक के ईमान पर बोला जाता है? बात एक ही है, वजह एक ही है। कहा जाता है कि नबी पाक के सहाबा नबी पाक के अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते थे। मैंने कहा यार मेरे करीब तो आना, हमारे पास तो आना, मैं अल्लाह का कुरान पढ़ के तुझे सुनाता हूँ। फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ारी रुहमाउ बैनहुम। सहाबा आपस में मोहब्बत करने वाले, सहाबा आपस में प्यार करने वाले। अगर बात नहीं समझे हो तो मैं यूं समझाना चाहता हूँ, जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के 3 बेटे थे। एक का नाम मोहम्मद था, एक का नाम अब्दुल्ला था, एक का नाम अब्दुल रहमान था। अब्दुल्ला वफात पा गए, बाकी मोहम्मद बचे, अब्दुल रहमान बचे। मोहम्मद को अल्लाह ने एक बेटा अता किया जिसका नाम कासिम रखा। अब्दुल रहमान को अल्लाह ने एक बेटी अता की जिसका नाम अस्मा रखा। कासिम और अस्मा का आपस में निकाह हुआ है। अल्लाह ने एक बेटी अता की है जिसका नाम उम्मे फरवा रखा है। ये उम्मे फरवा कौन है? जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पड़पोती है। इनका निकाह देखिएगा, इनकी शादी देखिएगा, किनके साथ होने लगी है? जनाबे अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पड़पोते हैं इमाम मोहम्मद बाकर। ये इमाम बाकर कौन है? ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं, इमाम हसन के पोते हैं और जनाबे अली के पड़पोते हैं। जनाबे अली के पड़पोते इमाम मोहम्मद बाकर, जनाबे अबू बकर की पड़पोती उम्मे फरवा। इन दोनों का आपस में निकाह हुआ है। अल्लाह ने एक बेटा अता किया है। दुनिया जिसे इमाम जाफर सादक कहती है, इमाम जाफर सादक को अल्लाह ने एक बेटा अता किया है। दुनिया जिसे इमाम मूसा काज़म कहती है, इमाम मूसा काज़म को अल्लाह ने एक बेटा अता किया है। दुनिया जिसे इमाम अली रज़ा कहती है, इमाम अली रज़ा को अल्लाह ने एक बेटा अता किया है। दुनिया जिसे इमाम तकी कहती है, इमाम तकी को अल्लाह ने एक बेटा अता किया है। दुनिया जिसे इमाम नकी कहती है, इमाम नकी को अल्लाह ने एक बेटा अता किया है। दुनिया जिसे इमाम हसन अस्करी कहती है। अगर बात नहीं समझे हो, मैं थोड़ा सा बैठ जाना चाहता हूँ। उलमा की मौजूदगी के अंदर एक
बात समझाना चाहता हूँ। इमाम हसन अस्करी के अबू का नाम इमाम नकी है, इमाम नकी के अबू का नाम इमाम तकी है, इमाम तकी के अबू का नाम इमाम अली रजा है, इमाम अली रजा के अबू का नाम इमाम मूसा काज़िम है, इमाम मूसा काज़िम के अबू का नाम इमाम जाफर सादिक है, इमाम जाफर सादिक के अबू का नाम इमाम मोहम्मद बाकर है, इमाम बाकर की बीवी का नाम उम्मे फरवा है, उम्मे फरवा की माँ का नाम अस्मा है, अस्मा के बाप का नाम अब्दुर्रहमान है, और अब्दुर्रहमान के बाप का नाम अबू बकर सिद्दीक है, अबू बकर सिद्दीक है, अबू बकर सिद्दीक है। इसलिए ये मेरा दावा है, ये मेरा ऐलान है, ये मेरा पैगाम है। सहाबा भी अज़मत वाले, अहले बैत भी अज़मत वाले, मेरे आका की बेटियां अज़मत वाली, मेरी आका की बीवियां अज़मत वाली, मेरे आका का सहाबा अज़मत वाले। आखिर में क्या देना चाहता हूँ, मेरी जान सहाबा, मेरी हकीकत सहाबा, मेरी मवद्दत सहाबा, मेरी चाहत सहाबा, मेरी लगन सहाबा, मेरी सुबह सहाबा, मेरी शाम सहाबा, मेरे दिन सहाबा, मेरी रातें सहाबा। अगर दुनिया झूठ बोले सिद्दीक सहाबा, अगर दुनिया कुफर पर हो फारूक सहाबा, अगर दुनिया बेहया है उस्मान सहाबा, अगर दुनिया डरपोक है हैदर कर्रार सहाबा। मेरे आका पर अपनी जान निछावर करने वाले, माल देने वाले, औलादें कुर्बान करने वाले सहाबा हैं। दावत ये है सहाबा के भी गुलाम बन जाओ, अहले बैत के भी गुलाम बन जाओ। अल्लाह तुम्हें इस जहान में भी चमका देगा और mahशर के मैदान में भी चमका देगा। अल्लाह हमें सहाबा किराम और अहले बैत की मोहब्बत को समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ने फिर कभी मौका दिया, इंशाअल्लाह आप अहबाब से गुफ्तगू करेंगे। बड़े ही शौक से सुन रहा था ज़माना दास्ता हमारी, अरे हम भी रुक गए दास्ता कहते कहते। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।